حکیم لقمان ثاقب کو کھلا چیلنج ہے جدو مرضی آ جائے اپنے 4 لونڈے بھی لے آئے. جسٹ ریسپیکٹ پروفیٹ. گفتگو مفتی سید ذوالفقار علی صاحب, گفتگو جو ہے ابھی مفتی سید, بھائی تو مومن ہے کیا بھائی؟ گفتگو مفتی سید ذوالفقار علی صاحب اور آدم سیکر صاحب کے بیچ میں ہوگی ڈیبیٹ. اور یہ جو مفتی سید ذوالفقار علی صاحب ہیں یہ 60+ ہیں, ان سے عزت کے ساتھ بات کریں کیونکہ ان کو یہ ٹیکنالوجی یہ سب نہیں جی, ان کو کیونکہ یہ ٹیکنالوجی یہ سب نہیں پتا ہے تو انہوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے. اور گفتگو ساحل صاحب آپ سے نہیں ہوگی, گفتگو صرف اور صرف آدم سیکر صاحب سے ہوگی. جی, مجھ سے نہیں کرنا ہے یہ جو جی آدم سیکر صاحب سے ہوگی, مفتی صاحب. ارے مجھ سے نہیں کرنا ہے کیا؟ جی آپ سے نہیں کرنا ہے آدم اچھا سیکر مجھ سے صاحب. نہیں, ریکارڈڈ نہیں ہے بھائی, لوگ ریکارڈڈ نہیں ہے بھائی. ابھی ہے مفتی صاحب جی, اور کیا ہم آدم سیکر صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, لیکن مجھ سے کیوں نہیں کرنا ہے بھائی؟ جی, کیونکہ آدم سیکر صاحب چیلنج کرتے ہیں مفتیوں کو, اس لیے ان کے ساتھ. ارے تو میں تو مفتیوں کو سیدھا کال کرتا ہوں, ایڈم صاحب تو چیلنج کر رہے ہیں. ابھی پھینک دے چیلنج. چلو میں بھی چیلنج کرتا ہوں آپ کے ساتھ, جو مفتی ہے اس مسئلے پہ بات کر لیں. جی, آدم سیکر صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ ہوگی مفتی صاحب کا, اور اگر آدم سیکر صاحب ہار جاتے ہیں تو ان کو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا. جی, یہ شرط ہے. چلو یہ دیکھیے کتنا ڈر ہے کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے, الٹا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایڈم سے نہیں کرنا ہے, ساحل سے کر لیتے ہیں, کیونکہ ساحل جو ہے وہ تھوڑا سافٹ ہے اور سن لے گا بات, گالی گلوچ نہیں کرے گا. لیکن بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے ساحل سے نہیں کرنا ہے, مجھے. اچھا ابھی ہے آپ کے ساتھ مفتی صاحب کی آواز سناؤ. ارے کیا ٹائم پہ آیا, میں بس ڈسکارڈ پہ میسج ہی کرنے والا تھا کہ یار تیرے اوپر چیلنج دیکھ رہی ہے پبلک. آدم سیکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم. آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ایک شخص ہیں مفتی سید ذوالفقار علی صاحب, لے آئیے. آپ سے گزارش ہے, یہ 60+ ہیں, ان سے تھوڑا عزت کے ساتھ تمیز کے ساتھ عزت سے ہی بات کریں گے بھائی, میں لے لیتا ہوں گارنٹی, عزت سے ہی بات کریں گے. ایڈم صاحب لیٹس ریسپیکٹ ہم. یہ آپ سے, اور لیکن شرط یہ رہے گی کہ مفتی صاحب جو بھی بولیں گے ریفرنس کے ساتھ بولیں گے. جی ریفرنس کے ساتھ بولیں گے, لیکن آدم سیکر صاحب مفتی صاحب آپ کی پرسنلی فل ریسپیکٹ کریں گے, کیونکہ ان کو یہ ٹیکنالوجی یہ سب نہیں پتا, اور وہ سیدھا آ جائیں گے تو اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو نہیں چلے گی, اس لیے انہوں نے مجھ سے بولا. یار اتنی شرطیں نہیں کرے نا یار, آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ مجھے سنتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا میں اس سے بدتمیزی نہیں کرتا. پلیز یار ایسی شرطیں باندھ کے یار ٹائم ویسٹ نہیں کریں, پلیز بلائیے انہیں. ریپیٹ کر رہے, لے کے آئیے مفتی صاحب. جی ایک چھوٹی سی بات رہی, بات یہ جو حضرت خدیجہ جی جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے پروپوزل آپ نے نہیں ابھی بات کرنا ہے بھائی, آپ کا مسئلہ کیا ہے, ان کو لاؤ, مفتی صاحب کو دو. جی نہیں, کیونکہ مفتی صاحب کا جو ٹاپک ہے اور آدم سیکر صاحب وہ ان آپ کو سے بات ڈیبیٹ کرنے کریں دو. گے. جی اگر آپ ڈیبیٹ ہار جاتے ہیں بار بار آپ کلمہ میری پڑھیں گے. بات سنو بھائی. جی اچھا ایڈم صاحب آپ کلمہ پڑھیں گے اگر آپ ڈیبیٹ ہار جاتے ہیں. اگر آپ ہار ٹھیک جاتے ہے, اگر مفتی صاحب ہار گئے تو وہ کیا کہیں گے کہ محمد ایک جھوٹا نبی تھا؟ شرط برابر کی ہوتی ہے نا. ایک منٹ جی لو ساحل صاحب, شرطیں لگانے پھر برابر کی لگائیں نا. ہاں دونوں پھر لگے گی, یا تو شرط مت لگا بھائی, یا تو شرط لگانا ہے تو دونوں سائڈ سے لگے گی. مفتی صاحب کو منظور ہے, مفتی صاحب کو دیجئے اور انہیں کہ یہ ٹاپک بتائیں اور آئیں بات کریں. جی ابھی ان کو ہیڈ فونز دے رہا ہوں میں. جی, اور ٹاپک ہے ٹرینٹی ورسس توحید. ٹرینٹی ورسس توحید. لے آ یار مفتی کو, لے آ یار, لے آ. جی اور ایک منٹ صاحب, لو بھائی ٹرینیٹی ورسس توحید, چلو اتنا بھی ان کی مان لیتے. مفتی تو لا یار تو. جی آدم سیکر صاحب یار آج کی تاریخ میں مفتی صاحب کو دو گے. ہاں
वो कह रहे हैं आप पहले ट्रिनिटी का पॉइंट्स आप रख दें, फिर यार वो मैं नहीं कोई सामने पॉइंट लाओ रखूंगा, वो पहले। लाएगा यार, उसे बंदे को फोन दे। जी, आप उनको जी, फोन दो, वो क्योंकि डिसाइड कर लेंगे। जी जी जी, क्योंकि वो यार बैक स्टेज, अब स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। मुफ्ती ला, जिसकी बात कर रहा है आप यार उसको हेडफोन दे। भाई आप मुफ्ती साहब को दे दो, मुफ्ती साहब उनसे पूछ लेंगे क्या बात करना है, ठीक है? आपका रोल अभी खत्म हो गया है, दे जीसस दो का प्लीज। बाप को ने मेरी को किसने चौदह मेरी को किसी 14 बहन चोत कुत्ती माँ का बच्चा दल्ला तेरे वो हरामी, मुझे बाजू पता वाले लग गया तू मुफ्ती ने कौन है, हरामखोर कुत्ती के बच्चे, मुझे पता लग गया तू कितना कौन है बहन हरामी है। चोद। तेरी माँ में मैंने जब 14 था तू पैदा हुआ था बहन चोद, बगैरत हरामखोर। यार इतना माहौल सेट करके कितना बड़ा हरामी है यार ये। ओ मुफ्ती कोई खड़ा होने लगा एडम के सामने, और वो भी ये कहे कि हाँ वो कलमा वो मोहम्मद को झूठा बोल देगा मेरे साथ डिबेट करते हुए। और मर ना जाए ये, माँ के अंदर दोबारा जाके पैदा हो जाए दोबारा, तब भी ऐसी शर्त पे डिबेट नहीं कर सकते मुफ्ती ये। भौंकने अरे आया यहाँ पे। बाप रे। यार लेकिन कितना हरामी है यार ये, कितना हरामी है जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। हद हो गई यार। तू मजा आया है, लेकिन इसके हरामीपन पे 10 गाली खाने जरूर आता है यार। अच्छा यार इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, और मैं कभी जिसके साथ जो इज्जत से बात करे, मेरा कभी ये हमेशा से रहा है कि जो इज्जत तमीज से बात करे, कभी मैंने उसको कभी कुछ नहीं कहा कि इट्स इम्पॉसिबल कि मैं कुछ कहूँ, वरना फिर डिबेट करने का मकसद क्या है। लेकिन इन लोगों का दिल करता है कि ये गालियां खाएं, इनका दिल करता है और कुछ नहीं है। दे वांट टू हेयर द अब्यूजेस, दे लव इट। मुझे तो लगता है कि ये अच्छा लगता है, दे लव इट। भाई इज्जत से बात करो, क्या मसला है यार। और ट्रिनिटी वर्सेस तौहीद की डिबेट पे मैंने इनकार कब किया किसी को? मैंने तो कभी किसी को इनकार नहीं किया। मैंने वो जो एक आप लोगों का हराम का पिल्ला है, क्या नाम था यार उस हराम के पिल्ले का यार साहिल भाई, उसके 14 नुकात पे मैंने कहा था कि बहस ये 14 नुकात क्यों जैद पटेल। तूने, हाँ वो हराम का पिल्ला जैद पटेल, उसके 14 नुकात पे मैंने कहा था, मैं कहा 14 नुकात किस चीज के, टाइमर लगा होगा, तुम अपने टाइम में बात करो, मैं अपने टाइम में बात करूं, बात खत्म। मॉडरेटर होना चाहिए, पहले से चैट ही नहीं चलनी चाहिए, फिर सुपर चैट नहीं चलनी चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। कायद आजम के 14 नुकात हैं, इन लोगों के भी 14 नुकात हैं। आपने कोई भी गलत बात की, आप डिबेट हार के, क्या मतलब गलत बात की? एक पेडोफाइल नबी को पेडोफाइल नबी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? एक रेपिस्ट नबी को रेपिस्ट नबी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? सो ये हुज्जतें बांधना बंद करो भाई। तुम मुझसे तमीज से बात करो, इज्जत से बात करो, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। लेकिन तुम लोग तमीज इज्जत से बात नहीं कर सकते, तुम लोग खेलते हो विक्टिम कार्ड। एंड लेट मी से इट अगेन, तुम लोग खेलते हो विक्टिम कार्ड। तुम लोग अगले को जो मर्जी कह लो। साहिल के साथ डिबेट के ऊपर उसने साहिल के ऊपर पर्सनल अटैक किए थे, एक दफा नहीं 10 दफा किया था। मैंने इसे डिस्कॉर्ड में बोला था पर्सनल अटैक करना है साहिल, तूने अब इस पे पर्सनल अटैक करना है। साहिल उस जमाने में बड़ा शरीफ था, नहीं इसने किया। मुसल्टे खुद पर्सनल अटैक करेंगे, लेकिन जब रिस्पॉन्स में आप पर्सनल अटैक करोगे तो क्या रोना रंडी रोना किस बात का? ओ हो ये तो अटैक करता है, तो गाली देता है, तो ये करता है। अबे तुम लोगों का शेवा है, ये तुम लोगों का शेवा है, दिस इज हाउ यू वर्क। तुम कोई भी डिस्कशन आज तक लॉजिकल पॉइंट्स पे नहीं जीते हो, इम्पॉसिबल है, आज तक नहीं जीते हो। और फिर तुम लोग जीतने का शोर क्या मनाते हो? ओ इसने जवाब नहीं दिया, जवाब तो अगले ने दे दिया था, सारे जवाब दे दिए थे, लेकिन आपने कहना क्या है, उसने उस चीज का जवाब नहीं दिया था। तुम लोग अपने मुसलमानों के इमोशन से खेलते हो, इमोशनल वे में जीतने का ढोंग रचाते हो। दिस इज व्हाट योर प्रॉब्लम इज, एंड यू थिंक आई कांट प्ले द सेम गेम। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ये सारी गेमें खेलता रहा हूं, तुम्हारी साइड पे होके बचपन से। अब तो मौका आया, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं दूसरे भी, वी कैन प्ले द सेम गेम, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। आओ, भागते किधर हो? और वो जो पाकिस्तानी मुल्ला है दोबारा डिबेट कर रहा है मैथ्यू सोलोमन के साथ पाकिस्तान के अंदर, उसने कम्युनिटी पोस्ट लगाया था, क्या नाम था इस डंगर का, हकीम इमरान साकिब। लो जी साहिल साहब, ये हकीम इमरान साकिब पाकिस्तानी मुल्ला है, एक नंबर का जो है ना ये वो है, ठीक है, एक नंबर का 2 नंबर शख्स है। क्रिश्चियंस को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहना के ना
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉ के अंदर खड़ा कर देता है स्टेज पे और फिर कुत्तों की तरह भौंकता है उनके ऊपर, लेकिन क्रिश्चियन आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता प्रॉपर्ली। क्यों? क्योंकि वहां पे 495 सी लग जाती है, खुद सही हर बात है। चीज भौंकेगा। इसको मैंने आज से साहिल साहब 3 साल पहले से चैलेंज किया हुआ है करीम इमरान साकिब को। इसे कहा बन और बाहर आ, ओपन ग्राउंड में खेल, ताकि जितनी तू बकवास करेगा उसी लेवल पे मैं भी बकवास करके तुझे दिखाऊं, क्योंकि तूने तो बकवास किए बगैर रहना नहीं। और मुझे तो एक ही बात पता है, जो बकवास करे उसको उसकी औकात जरूर दिखाओ, शक्ल चेहरा जरूर दिखाओ, तो मैं भी उसी लेवल पे जाके खेलेगा। लेकिन ये क्यों नहीं आते? क्योंकि इन्हें पता है सेम लेवल फील्ड के ऊपर ये लोग खेल ही नहीं सकते कभी। तो हकीम इमरान साकिब, तुम्हें चैलेंज है, पहले भी किया था, दोबारा करता हूं, जब दिल करे आजा, एक बाप की औलाद बन, पाकिस्तान के स्टेजों पे खेलने के बजाय आज यूट्यूब पे खेल के दिखा, अगर एक बाप की औलाद है तो। ओपन चैलेंज है, सेम टाइम के ऊपर खेलना, सेम लेवल के ऊपर खेलना। वहां पे तो तुम लोग डिबेट करते हुए बंदे को स्टेज पे रोक देते हो, नहीं नहीं ये तफसीर नहीं पढ़नी, हम इन तफसीरों को नहीं मानते। क्या मतलब है? साहिल साहब, एक बंदा स्टेज पे खड़ा होके अपने टाइम में डिबेट में तफसीर पढ़ रहा है, हु आर यू टू से कि ये तफसीर नहीं पढ़नी? तुम अपने टाइम में कह दो यार हम नहीं, मैं नहीं से मानता, जब तुम्हारा टाइम आएगा उसमें कहो कि यार मैं नहीं मानता। तुमने अपने ओपोनेंट को, क्योंकि पाकिस्तान है भाई, स्टेज है, वहां पे आप जो मर्जी कर लें, डिबेट के रूल आप अपनी मर्जी जब मर्जी चेंज कर लें। सही बात है यार। तो ये जो इमरान साकिब है ना, इसको पहले भी चैलेंज था, आज भी चैलेंज है, पाकिस्तान के स्टेज पे खेलने की बजाय यूट्यूब पे आ, खेल के दिखा, जीत के दिखा। जीतना तो बड़ी दूर की बात है, जीतना तो बड़ी दूर की बात है, जीत तो तू ताउमर जीत नहीं सकता। जरा आके अपनी ही चीजें हमारे मुंह से सुन तो ले, क्या लिखा हुआ है। साहिल साहब, इतनी तो हिम्मत पैदा करिए। ये देखे साहिल साहब, ये है वो डंगर, ये वो डंगर आपकी है, स्क्रीन नहीं दिख मैं रही है आपको एडम दिखाता साहब। हूँ, मैं दिखाने लगा हकीम इमरान साकिब को खुला कब का दिया हुआ, जरा ये भी देख लें साहिल साहब। ये एक लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने इसको चैलेंज किया था, उसके बाद कोई 6 महीने बाद किसी ने मुझे कहा कि यार इसकी शॉर्ट वीडियो बना के डालो। इसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी, और शॉर्ट वीडियो डाले भी 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, और उस तकरीबन 3 साल हो गए इसको चैलेंज किए हुए। ये साहिल साहब मेरे पास शेयर की और कहा कि जनाब इन साहब ने कहा है कि ये हदीस, ये देखें डिबेट कर रहा था पीछे टोपी वाला, इसके पीछे जो खड़ा टोपी वाला वो डिबेट कर रहा था, और ये वाला बंदा, ये जो लाल लाल टोपी वाला ये डिबेट कर रहा है, और इसके पीछे जो ग्रे टोपी वाला ये डिबेट कर रहे हैं। ये दो बंदे डिबेटर्स हैं, ये आई कोई नहीं। ये बंदा जो है नाजिम है, ये बीच में उठ गया है आके, ये हकीम साकिब है, हाँ, ये हकीम साकिब है, उठा के क्या शक्ल ही बकवास एकदम करता है, सुने साहिल लानती साहब। वाली है। ओहो, हरामियों वाली शक्ल है सर, चीज पे यकीन नहीं रखते। ये देखे, सुनिएगा। तो तफसीरों के अंदर तुक्के लगाए होते हैं, बड़ा कुछ लिखा होता है, वो हमारे लिए सुन ले यार, आप बात मत। अब ये जो बंदा है वो डिबेटर है, वो डिबेटर को रास्ते में रोक दिया बात करते हुए। खबर साथ में चलिए, मैंने करनी है, ठीक है। उन्होंने इसराइली रवायतें लिखी होती हैं, तारीखी रवायतें, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारे लिए दलील है कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। सो भाईजान, मैंने ऑथेंटिक कुरान करीम नबी सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिखा दिया है। हकीम साहब, नीम हकीम खतरा है जहां, तुम्हारे पास अगर कपूड़ों के अंदर थोड़ा सा भी पानी है तो आओ मेरे पास, यहाँ पे आके बात करो। वहां पे स्टेज पे बेचारों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना के खड़ा कर देते हो, और फिर स्टेज पे आके उन लोगों को इंटरप्ट करते हो। आओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊं। मैंने आज कोई हदीस नहीं खोली, मैंने आज कोई तफसीर नहीं खोली, सिर्फ अपनी बात कर रहा था, इस डंगर के साथ हो रही है। बीच में आ गया, ओए तफसीर हमारी हुज्जत नहीं है, तफसीर हमारी हुज्जत नहीं है। हेलो, तो तफसीरों के अंदर तुक्के लगाए होते हैं, तफसीरों के अंदर तुक्के लगाए होते हैं, मैं अपनी तफसीर खुद बनाऊंगा। और डंगर तेरे कपूड़े जो हैं वो टकाटक बिक रहे हैं वहां पे, यहाँ पे हमने बेच दिए, तेरे मोहम्मद के भी कपूड़े टकाटक बेच दिए हैं, तेरे अल्लाह के भी कपूड़े टकाटक बेच दिए हैं, यहाँ पे टकाटक करके सारे खिला दिए हैं। अबे डंगर, इधर आ, तफसीरों में तुक्के लगे हुए हैं, ले फिर कुरान में भी तुक्के लगे हुए हैं। तू रोएगा, अब तू रोएगा तफसीरों पे जाने के लिए, तू रोएगा, आ मेरे पास। बात ये है कि कैथोलिक वो हमारे लिए, इसको मैंने चैलेंज किया था कि मैं कुरान ओनली खेलूंगा, और तू रोएगा कि तफसीर खोलो। लो जी, मेरा चैलेंज साहिल साहब आज भी खड़ा है, ये आ जाए मेरे सामने। आपने अभी जो
एडम साहब आपने अभी जो बात की है कि इनके कपूरों में पानी खत्म हो गया है, इसके मेरे को लगता है सिर्फ इसके नहीं, सारे मोमिनों के कपूरों में पानी, लगता कंचों में पानी खत्म हो गया है, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही वेल सेड किसी की सर, हिम्मत ही नहीं पड़ रही है खत्म हो गए हैं ये। इनको आज तक सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना आता था, खड़े करके जलील कर दो, विक्टिम कार्ड खेल लो। यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने जब खोल खोल के बयान किया है तो सर अब खत्म है, वो विक्टिम कार्ड खेल नहीं सकते हैं। कपूड़ों में पानी नहीं रहा साहिल साहब, चैलेंज सब इसको है आज खस्सी हो भी। गए, खस्सी, फुल टाइम खस्सी, नुचड़ गए नींबू की तरह। ये देखिए आगे थोड़ा सा। ये सुन ले यार। अच्छा ये भाई फौरन कह रहे किसने लगाए हुए तुके भाई, और यार उसे डंगर को बोलने दे। असल में प्रॉब्लम यह है कि ये लोग वहां पे बैठ के बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? दफे लगाई हुई हैं 295 200। ये मोमिन उस वक्त कहां मरे होते हैं? इस बंदे को बता दिया वो लोगों ने कि एडम ने तुम्हें चैलेंज दिया, आना डंगर। मैंने करनी है। उन्होंने इस्राएली रिवायतें लिखी होती हैं, तरीखी रिवायतें, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारे लिए दलील है कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। बस जी, लो जी, कुरान करीम, नबी करीम का फरमान, वो पीडोफाइल प्रॉफिट का फरमान, वो पीडोफाइल प्रॉफिट का फरमान मैंने आज आपको दिखा दिया है। जोधर साहब क्या कह रहे हैं? शुक्रिया आदम सिंह, जो लास्ट लाइव स्ट्रीम है, क्या नाम है इसलिए लास्ट लाइव स्ट्रीम का, ये जिस तफसीर का इसका दिल करता है, जिस चीज करता है उसे दईफ कर देता है। भाई किधर से तू कौन होता है? दोबारा देखे जरा, तरीखी रिवायतें वो हमारे, ये तकरीब नहीं करते। देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जब ये भाई आगे बोले। देखें शराइत जो है वो दो तरफा है, वो दोनों के लिए एक जैसी शराइत है। देखें पहली बात है कि अगर कोई एतराज करना है तो मॉडरेटर का काम है ये। एग्जैक्टली लो साहिल साहब, ये वो क्रिश्चियन मॉडरेटर बिल्कुल। था, एक क्रिश्चियन मॉडरेटर है और एक मुस्लिम मॉडरेटर है। अब उसने वही कहा था कि यार दो बंदे डिबेट कर रहे हैं, एक बंदा अपने टाइम पे बोल रहा है, एक अपना टाइम पे बोल रहा है। अगर एतराज भी उठाना है तो मॉडरेटर का काम है। तू किस तरह बीच में बढ़ गया? ये आपका काम नहीं है मॉडरेटर। और यार आपने तो आसमान सर पे उठा दिया, उनको चाहिए खुद। आप देखें, ना ये मॉडरेटर है, ना ये डंगर तकरीर कर रहा है, नाइदर मॉडरेटर नॉर मुकर्रर। तो ये डंगर किस हिसाब से उठ के आया? अच्छा, जब ये लोग बाइबल प्रेजेंट करते हैं, बाइबल की वर्सेस प्रेजेंट करते हैं, तो ये बाइबल का एक्सेजीजस भी नहीं प्रेजेंट करते। ये लोग अपनी मर्जी की तफसीर प्रेजेंट करते हैं, अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करते हैं, अपनी तरफ से कई इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब क्रिश्चियंस स्टेज पे खड़े होके कुरान की आयतें प्रेजेंट करते हैं और कुरान के जो अर्ली सुन्नी स्कॉलर्स हैं उनकी तफसीरें प्रेजेंट करते हैं, उनकी बात, उसके ऊपर भी इस डंगर को एतराज है। नहीं साहिल साहब, यही गेम है पूरी डिबेट। अगर आप सुने ये वाली, ठीक है, उसने बाइबल के ऊपर अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन की है, अपनी मर्जी से साहिल साहब, ठीक है। इस क्रिश्चियन डिबेटर ने आके कुरान की आयत पढ़ के कुरान की अर्ली तफसीरें पेश की हैं, तब भी उसको आग लग गई है। अब मुझे बताओ, अब यूट्यूब चैनल पे जब वो आए और मेरे साथ ऐसा करे कि बाइबल की एक आयत पकड़े और अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करे, आपको पता है मैं क्या करता हूं? मैं कुरान की आयत पकड़ता हूं और अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करना शुरू कर देता हूं, फिर मैं जाके बजाता हूं सही तरीके से। भाई यहाँ पे 495 नहीं है, यहाँ पे 495 नहीं है आओ यहाँ पे। वहां पे तो तुम लोगों को तफसीरें नहीं पढ़ने देते, यहाँ पे आओ तुम्हें बताएं कि औकात क्या है तुम्हारी। सर सब ये चीज है सर। अभी ये दोबारा अगस्त को सोलोमन मैथ्यू से डिबेट करने लगा, अगस्त 7 को मैथ्यू सोलोमन से डिबेट करने लगा है, जो कि एक पास्टर है पाकिस्तान में। अब मेरे मैथ्यू सलमान डिबेट कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैथ्यू सलमान बोल ही नहीं सकता वो तमाम चीजें जो कि बोलनी चाहिए। क्यों? पाकिस्तान में बैठ कर डिबेट कर रहा है, उधर वहीं पे मार देंगे भाई। हाँ, वो ऑडियंस खुल के बात नहीं कर सकता वो ओपनली। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पाकिस्तान में रहता है, हल्का सा उसने लेफ्ट राइट। और ये बंदा, लो जी आज का दिन याद रख लो, 7 अगस्त को डिबेट होगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि ये बंदा बाइबल के ऊपर किस किस किस्म की तोहमतें उठाएगा, किस तरीके से ये अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करेगा, जो कि इंटरप्रिटेशन बनती भी नहीं है। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ लो तो भी नहीं बनती, लेकिन ये बनाएगा, ये बगैरत बनाएगा। और पास्टर मैथ्यू सुलेमान जो है कुछ नहीं कर सकेगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा। एक्सेप्ट ही क्यों करते? फिर इन लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए ना, डिबेट करना ही नहीं चाहिए। इतना बंद रह के विदाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिबेट पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग डिबेट सिर्फ इसलिए करते हैं कि बाइबल के डिफेंस दे सके,
تاکہ ان کے جو بچے ہیں جو پاکستان میں جن کو یہ لوگ مسلطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پتہ لگے کہ یار یہ جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. ان لوگوں کا پرپس صرف یہی ہوتا ہے بیچاروں کا کہ یار ہم صرف ڈیفنس میں یہ کھیل کے بتا دیں اس دنیا کو جو کہ ہماری ہے, جو کہ دیکھے تو کہ ہاں یار یہ ایسے نہیں ہے, غلط انٹرپریٹ ہو رہا ہے. اصل میں کانٹیکسچولی یہ ہے. ان ریئلٹی آپ دیکھا ڈیبیٹ میں 80% آف ٹائم وہ ڈیفینسو پوزیشن میں کھیل رہا ہوگا اور 20% اعتراض اٹھائے گا, اور اعتراض بھی بڑے پیار طریقے سے, اچھے طریقے سے, کیونکہ ہلکی سی بات غلط کی نہیں تو 495 لگ جائے گا. مسلمانوں کے 495 کا کیا ہے, ان کے احساسات مجروح لکھا گیا ہے, احساسات مجروح ہو گئے ہیں تو 495 لگ جاتا ہے. 495 احساسات کے مجروح ہونے میں لگ جاتا ہے ساحل صاحب. تو آپ دیکھیں صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنی فیملیز وغیرہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو 2% رہ گئے ہیں کرسچن پاکستان میں وہ 2% رہ لیں عزت سے بس. ادروائز اور مجھے اس ڈیبیٹ کا, پاکستانی سٹیج کی ڈیبیٹ کا مجھے اور کوئی مقصد سمجھ نہیں لگتا. وہ لوگ آتے ہیں اٹیک پہ اٹیک کرتے ہیں, گولیوں پہ گولی چلاتے ہیں, یہ لوگ آگے صرف شیلڈ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں بس. دیٹس اٹ. اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ڈیبیٹ کرنی ہے ذرا حکیم لقمان ثاقب مرن جوگا کیڑے پین ایسے کہتے ہیں نا پاکستان میں. یاد آیا حکیم لقمان تیری ماں نے کس طرح کی گالیاں دی ہوں گی تیرے کو, کیڑے پین, ہاں مر جانے کتیا, یہی گالیاں سن سن کے تو بڑا ہوا ہے نا. شکل دیکھی تو نے, تیری شکل دیکھ کے پتہ لگتا ہے کس گندی گلی کی نالی کی پیدائش ہے. تیری شکل سے پتہ لگ رہا تو نے کیا ڈبیٹیں کرنی ہے. نالی کے پانی پی پی کے وڈے ہونے والی قوم, وڈا ڈبیٹر بندا تو. اچھا اور ایک چیز دیکھو نا ایڈم صاحب, یہ تو آپ نے پورا بہترین طریقے سے ایکسپوز کیا ان کو. یہ جو پرانا ڈنگر ہے عدنان راشد, یہ اگر جا کر قادیانیوں کے چینل پہ جا کے ان سے ڈسکشن کر سکتا ہے, اس کا لیٹسٹ ابھی میں دیکھ رہا تھا, وہ راضی کے ساتھ بات کر رہا تھا. ہاں ہم نے ایکسپلور بھی کیا تھا اس کے اوپر, میں نے پوری انگلش میں ویڈیو بنائی تھی لیٹسٹ ابھی ایک اور کی ہے اس نے. ہاں ان لوگ نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی تو اگر وہاں پہ جا کے قادیانیوں کے چینل پہ جا کے اگر ان سے یہ کر رہا ہے, بحث کر رہا ہے, ڈیبیٹ کر رہا ہے, ڈسکشن کر رہا ہے بھائی, تو یہاں پہ آنے کی تمہاری ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ساحل صاحب میں بتایا تو اس کا جواب, وہاں پہ قادیانیوں کے چینل پہ جا کے اٹیک کرنا ہے نا انہوں نے قادیانیوں کے اوپر, اور کیا کرنا ہے. اور انہیں پتا ہے کہ قادیانی ریورس میں اٹیک کس پہ کریں گے, محمد تو ان کا بھی ہے, ایگزیکٹلی اٹیک کس پہ کریں گے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر مینٹالٹی ہاؤ دے پلے دا گیم. میں اسی لیے جب شروع میں آیا تھا اپنے چینل پہ میں نے کہا تھا بھائی اٹیک از دا بیسٹ ڈیفینس, کیونکہ ہم نے ساری عمر دیکھا ہے, ہم نے اٹیک کرتے ہوئے دیکھا, اٹیک کیا ہے, اٹیک پہ پایا ہے. اب بیٹا ریورس کرنا ہے ہم نے, ناؤ ہم نے ریورس کر دیا, اب الٹی گنگا بہانی ہے, ضروری ہے الٹی گنگا بہانا ساحل صاحب. بالکل. اس گنگا کو جب تک الٹا نہیں بگاؤ گے تب تک یہ ڈنگر سمجھیں گے نہیں. اور یہ ان کی اوقات اتنی ہے ساحل صاحب, یہ اٹیک کر سکتے ہیں, ڈیفنس میں فارغ ہیں یہ. ان کو ابن قیم الجوزیہ نے اٹیک کرنا سکھایا تھا 13ویں صدی میں. جب ان کی تلوار ٹوٹی تھی تو وہاں پہ ابن قیم الجوزیہ نے ان کو تھیولوجیکل اٹیک سکھایا تھا. وہ تھیولوجیکل اٹیک یہ پچھلے 700 سال سے کر رہے ہیں. دیٹس اٹ, سیم اٹیکس ہیں. ابن قیم الجوزیہ کی کتابیں پکڑ لیں, آج تک کوئی نیا اٹیک انہوں نے سیکھا ہی نہیں. ان کے ملاؤں نے وہی بھونکا ہے, آج تک وہی بھونک رہے ہیں, اور وہ سارے کے سارے مسمار کیے. ناؤ بیٹا اب تمہاری بات ہے, آ جا اب ہون چھڑی تھلے آ. ہاں پتر حکیم لقمان ثاقب کو کھلا چیلنج ہے, جدو مرضی آ جائے, اپنے 4 لونڈے بھی لے آئے,